let's take a question concerning power. In the question we have, find the energy in kilowatt hour in the month of September by 4 devices of power 100 watt each if each of them is using 10 hours daily. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 डिवाइस है जिसको हमने मंथ ऑफ सितंबर, ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कोई काम का नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो इसको. मतलब बेसिकली हमारे पास 4 डिवाइस है जिसको हमने एवरी डे 10 आवर्स डेली चलाया है और ईच डिवाइस कितना पावर कंज्यूम करता है 100 वॉट. हमें क्या निकालना है? टोटल एनर्जी कंज्यूम. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन टू अस. हमारे पास गिवन क्या है? पावर ऑफ ईच डिवाइस इज 100 वॉट. ऑल्सो व्हाट इज द टाइम, हम कितने के लिए उसको ऑपरेट कर रहे हैं? 10 आवर्स के लिए. बट हम 10 आवर्स उसको डेली ऑपरेट कर रहे हैं और हमें निकालना कितने के लिए है? पूरे मंथ के लिए. तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 30. सो द टाइम बिकम्स 300 आवर्स. अब ये आर को आप आर में ही रहने दो, सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू. व्हाई? Because the question is asking the total energy consumed in kilowatt hour, not second. So keep this quantity in hour itself. तो हमारे पास पावर है, हमारे पास टाइम है. And how many are the devices? There are 4 devices. So the total power will be 100 multiplied by 4. तो हमारे पास में पावर है, टाइम है. What do we have to calculate? We just have to calculate the total energy all the devices are consuming in the month of September. So we have to calculate, let me write energy as E is equal to what? So let's calculate that. बहुत ही easy सा question है. We have the formula for power. Power is equal to work done upon time. तो हमारे पास में क्या है? पावर है, टाइम है. तो W एक साइड ले लेते हैं. तो this becomes P into T. Let's just substitute the values. पावर कितना है हमारे पास? 100 एक डिवाइस का है. तो फिर 4 डिवाइसेस के लिए कितना? Multiplied by 4. This is the total power. Multiplied by the total time. What is the time? 300. और ये कितना है हमारे पास? R में. So this is 300. So this becomes 400 multiplied by 300. 4 3s is 12 and these zeros continue on. So this is 12,000. What is the unit of this thing? 1,20,000 watt hour. अब हमें क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी किस फॉर्म में है? किलोवाट आवर. एंड वी नो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 वॉट. तो अगर हमारे पास ये वॉट आवर में आंसर है तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000. तो हमारा वर्क डन या फिर एनर्जी कितना आ जाएगा? 120000 डिवाइडेड बाई 1000. अब ये क्वांटिटी किस में आ गई? किलोवाट आवर में. So these 3 zeros get cancelled and we have the total work or the energy consumed by the 4 devices in the month of September as 120 kilowatt hour. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. हमने कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा. हमें दिया हुआ था कि हमारे पास 4 डिवाइस है, एक डिवाइस 100 वॉट कंज्यूम करता है. तो 4 डिवाइस कितने करेंगे? 400 into 4 that is 400 वॉट. We were also given with the time that is 10 hours daily. अब daily 10 hours है और हमें total duration कितना था? 30 days for the month of September. Hence the total time became 10 into 30 which is 300 hours. We were just left to find the energy consumed. तो हमने normal ये वाले formula से calculate किया and firstly we got the answer in watt hour but we had to calculate it in kilowatt hour. Therefore we divided the quantity by 1000 and got the answer as 120 kilowatt hour. So this is how you can calculate the energy consumed by devices if you are given by the power consumed by them. Now let's go to a question of kinetic energy. The kinetic energy of an object of mass m moving with velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is increased by 3 times? सिंपल एक क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m गिवन है, वो एक वेलोसिटी से चल रहा है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. जब ये ऐसा चल रहा है तब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है दैट इज 25 जूल. क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि अगर ये वेलोसिटी को मैं 3 गुना कर दूं, 5 की जगह पे 15 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स नोट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन. द मास ऑफ द बॉडी इज m itself, so m is equal to m. The initial velocity is 5 meter per second and we are also provided with the kinetic energy that is 25 जूल. बस इतना ही हमें गिवन है और हमें फाइनल वेलोसिटी, ये अगर मैं vi इनिशियल लिख दूं तो vf
फाइनल क्या होगी 3 times of Vi. So it is also given. So what we have to find? We have to find the new kinetic energy of the body. If I write the initial one as KEI, so we have to find KEF. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम क्या करेंगे सबसे पहले, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है हाफ mv², पर इसके अंदर हमारे पास मास m नहीं है. वो हम कैसे निकालेंगे? केस 1 से. केस 1 अगर मैं लिखूं तो इसके अंदर हमारे पास में ke ऑफ i, बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², where v is vi, the initial velocity. We have been given that the initial kinetic energy is 25 joule. So that is 25 equals half multiplied by the mass, which is m itself, जो हम इस केस से निकालेंगे. And we have initial velocity, which is phi squared. So this becomes equal to 25 as it is, half multiplied by m multiplied by phi into phi is 25. तो ये 25 यहाँ से कैंसिल हो सकता है. And I can multiply 2 over here. और अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर दूं, or let it be like that, this becomes 2 is equal to m, which can be reversed to write m is equal to 2 kg. तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट का मास आ गया, that is 2 kg. Now we can easily find the KEF. For that we first write the final velocity. VF कितना given है? 3 times of VI. What is VI? 5 meter per second. तो VF कितना हो गया? 3 into 5 meter per second. So this becomes equal to 15 meter per second. अब हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी है, मास ऑफ द बॉडी है, तो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच द बॉडी विल बी हैविंग. सो लेट्स डू दैट. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज द बॉडी इज हैविंग फाइनली? इट इज इक्वल टू अगेन हाफ mv². इस बार v क्या है? vf. सो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? KEF remains as it is on left side, half m हमने निकाला, that is 2 kg multiplied by VF, which is 15 meter per second. So 15 squared. So this becomes equal to half into 2 into 15 multiplied by 15. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं. We have 15 into 15 which is 225. तो ये क्या आ गया हमारा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज 225 जूल्स. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. सबसे पहले हमने क्या किया? गिवन क्वांटिटीज नोट करी. क्वेश्चन ने हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले से दी हुई थी, वेलोसिटी भी दी हुई थी, तो उसकी मदद से हमने क्या निकाला? वी कैलकुलेटेड द मास. आफ्टरवर्ड्स इट सेड दैट वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 3 times. तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड. मास हमें गिवन था 2 kg. तो उसकी मदद से हमने इजी हमारा ये फॉर्मूला लगा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, which came as 225 joule. Now let's take another question where we solve the kinetic and potential energy at a certain point. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is the potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास 40 kg का, उसको हम पहले एक हाइट तक लेके गए, सर्टेन हाइट विच इज 5 मीटर. क्या किया हमने? उसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, एंड जब वो हाफ वे डाउन आया तब हमें वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर, 5/2. तो हमें पूछा क्या है? फर्स्ट जब हम उसे एक हाइट पे लेके गए 5 मीटर वाले पे, तो हमें उसकी क्या निकालनी है? एट दैट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी. एंड सेकेंड जब वो हाफ वे आ गया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो लेट्स राइट व्हाट इज गिवन टू अस फर्स्ट. व्हाट इज गिवन टू अस फर्स्ट इज द मास ऑफ द बॉडी विच इज 40 kilograms. After that we have been given with the height. The total height is 5 meter. उसके अलावा हमें इस ऑब्जेक्ट में इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है. एंड ऑल्सो द इनिशियल वेलोसिटी वी कैन टेक इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है. वी हैव टू राइट व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है. इफ आई नेम द पॉइंट्स A एंड B ओवर हियर, so firstly we have to find the potential energy at point A, that is the highest point. So what is the potential energy at point A, and also the kinetic energy halfway down, which I have named point B. तो हमें PE of A and KE of B फाइंड करना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? लेट्स सी.
एट द हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे मैंने अब तक उसको छोड़ा नहीं है, इफ आई हैव दैट थिंग एट रेस्ट, सो आई ओनली हैव अ हाइट, आई डू नॉट हैव अ वेलोसिटी। और अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो हमारी जो के की वैल्यू होती है, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और अगर एक पॉइंट पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो फिर सारी एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर एट द पॉइंट ए, at point A, if the total energy TE is equal to KE plus PE, ये तो हमेशा राइट रहता है। अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो A पॉइंट पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो सारी की सारी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर द टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। लेट मी नेम इट द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये चीज तो हमें फाइंड भी करनी है, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, PE at A is mgh. We have been given by the mass, that is 40 kilograms. G तो हमें पता है, that is 10. And what is H? H is also given, that is 5. तो बहुत ही नॉर्मल से कैलकुलेशन है। This becomes 200 multiplied by 10. This becomes 2000 joule. तो potential energy at point A becomes 2000 joule. And by the equation 1 we know that the total energy is also 2000 joule. अब हमारे पास में एक पार्ट हो गया है सॉल्व। वी आर जस्ट लेफ्ट विद फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन। अब अगर ये हाफ वे डाउन है तो फिर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। वैसे तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर ये मैं h को आधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, mgh डिवाइडेड बाई 2। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी फुल हाइट पे थी अब तो उसकी आधी हो जाएगी, but still for the sake of calculation let's do that. तो PE at B is mgh dash. h dash क्या है, ये हमारी हाफ वाली हाइट, and we know that mg is constant, h dash क्या है हमारा h by 2. so अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। m क्या है हमारे पास में 40 into 10 into h by 2 which is 5 divided by 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 से कट हो गया। सो द होल थिंग बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज 1000 जूल। तो हमारे पास में क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी नो दैट द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज थ्रू आउट द होल जर्नी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, तो आप आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। हाउ, लेट मी राइट दैट। Total energy is kinetic plus potential. This is right as it is. तो हमारे पास में अगर मुझे पॉइंट बी के लिए निकालना है तो टोटल एनर्जी तो सेम ही है, तो इस फॉर्मूला को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट, पॉइंट बी इटसेल्फ। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ ये क्वांटिटी चाहिए, मेरे पास ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो लेट मी टेक दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑन वन साइड एंड रीराइट द फॉर्मूला एज KE at point B is equal to total energy minus what, potential energy at point B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमने लिखा दैट इज इक्वल टू 2000 जूल्स। सो 2000 माइनस व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B which we calculated as 1000 joules. So this becomes 1000. So the whole quantity becomes equal to 1000 joule। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉइंट B पे हाफ वे डाउन पे कितनी हो गई, 1000 जूल। ये आप इंट्यूटिवली बता सकते थे कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी अगर हाफ हुई है तो वो हाफ एक्सपेंड तो हुई नहीं होगी, इट इज जस्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2000 से जो 1000 हुई वो 1000 कहाँ चली गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाई, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, but halfway down it has certain velocity, hence it will be having some kinetic energy. So how did we solve this question? हमने सारी given quantities लिखी, हमें पता है कि total energy is always equal to kinetic plus potential. Now at point A we know that the potential energy is the entire total energy. Why? Because the object doesn't have any velocity, hence the kinetic energy at that point is 0. फिर हमने उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जो हमारी 2000 जूल आई, एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। आफ्टर दैट वी गॉट टू द मेन क्वेश्चन कि हाफ वे डाउन पे हम चीज कैसे निकालेंगे। हाफ वे डाउन है मतलब हाइट आधी हो गई,
तो हमने उस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली विच केम एज 1000 जूल। अब हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो उसको हमने क्या माइनस कर दिया टोटल एनर्जी से, एंड वी गॉट द काइनेटिक एनर्जी एज 1000 जूल। So this is how you calculate things when it is asked in a point between the journey. Let's talk in brief that what we have studied in this chapter. We started with work. What was work? It was when a force is applied on an object and it is displaced from its position, we said that the work is done. What was the amount of work? Work was given by force into displacement and its SI unit was joule. Then we studied about energy. एनर्जी क्या थी? हमारी एबिलिटी टू डू द वर्क। हमारी एनर्जी के दो फॉर्म थे, मैकेनिकल एनर्जी के टू फॉर्म थे। कौन से? फर्स्ट वन वॉज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी? इट वाज द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट गेन्ड बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसने कितनी एनर्जी गेन करी? वो कौन सी एनर्जी थी? हमारी काइनेटिक एनर्जी। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट वॉज द फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। बुलेट की बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, इसलिए वो आगे जाके स्ट्राइक करके उतना ही ज़्यादा वर्क कर रहा था। देन वी डिराइव द काइनेटिक एनर्जी विच वॉज गिवन बाई हाफ mv²। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन या शेप चेंज करने की वजह से वो गेन करता था। इन दैट वी सॉ द एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट करी, फिर हमने छोड़ दी तो एक्सपांड होती थी या बाउंस होती थी, बिकॉज इट गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच वॉज गिवन बाई mgh, एंड आफ्टर दैट वी हैड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ क्या कहता था? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम one form to another. And finally we talked about power. Power में हमने क्या देखा? It is the rate of doing work or the rate at which the energy is consumed or transformed from one form to another. Power का हमने फिर formula देखा, that P is equal to the work done upon the time taken to do that work. And after that we also saw the average power. Average power क्या होता था? Total work divided by the total time. And our final topic was the commercial unit of energy. ये यूनिट हम क्यों यूज़ करते थे? बिकॉज हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है जूल बहुत ही छोटा था। दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म दैट इज किलोवाट आवर, एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किलोवाट आवर विच इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। और ये 1 किलोवाट आवर को हमने क्या नाम दिया? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आता है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर ऑफ वर्क एंड एनर्जी।